Hello, students. Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Class 10 CBSE, UP Board and ICSE. Sector area and segment area related with the circle. सर्कल में आपको सेक्टर एरिया क्या होता है, सेगमेंट एरिया क्या होता है, कैसे उसको डिफरेंस करें और कैसे उसको निकालें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ. सबसे पहले सेक्टर एरिया. सेक्टर एरिया इज द एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल. ये ध्यान रखिए, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है. उसके से टुकड़ा निकाल दें अगर कोई एंगल बना के सेंटर के ऊपर, तो जो आपका पिज्जा पीस जो होता है, पिज्जा की पीस की तरह जो निकलता है, दैट एरिया विल बी अ सेक्टर एरिया. जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए गोल पिज्जा, बिल्कुल पिज्जे का डिजाइन देखिए आप, आपको दिमाग में आएगा. उसमें क्या होता है, आपके ऐसे पिज्जा काटते हैं, तो ये जो एरिया है दैट इज सेक्टर एरिया. ये डिपेंड करेगा आपके एंगल पे. ये दोनों रेडियस बराबर होंगे. दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, this will also radius, this is also radius. This area depends upon the angle by which they are separated from each other. दो रेडियस है, इसका सेक्टर एरिया कम हो गया, इससे और ज्यादा हो गया, इससे और हो गया, इससे और आ गया. यानी सेक्टर एरिया में दो रेडियस होती है और एक आर्क होता है. दिस इज द सेक्टर एरिया. शेप ऑफ द सेक्टर एरिया इज radius of the circle with an arc. That is known as sector area and depends on angle theta in between these two radius. Yeah. Or this, the formula for the sector area is theta upon 360 pi r square. ये आपको मेमोरी, it should be in your memory. ये आपको याद होना चाहिए. इसका ड्राइव भी किया जा सकता है आराम से. भाई पूरे सर्कल का एरिया कितना है, 3 पाई आर स्क्वायर. पाई स्क्वायर में टोटल कितना एंगल होता है, 360. तो 1 डिग्री एंगल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 60. अब जब थीटा एंगल बन रहा है तो कितना होगा, थीटा अपॉन 360. इट कैन ऑल्सो बी ड्राइव्ड बिकॉज होल एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. दिस होल एंगल इज इक्वल टू 360. It means area covered by the angle 360 by this, it means the area of the circle. Total circle is pi r square. Angle on the circle is 360. It means for single degree it will be covered this amount of the distance, area. Hence the angle at the center is theta, then it will be the multiple of this. This is the formal derivation of the segment of the area of the segment. ठीक, ओके. अंदर इज हमें सेगमेंट ही, अब हमें सेगमेंट क्या है, ये सेक्टर हो गया. अब सेगमेंट क्या है, सेक्टर और सेगमेंट. दिस इज सेक्टर. सेक्टर हमेशा याद रखिए, सेक्टर विल हैव द शेप covered by an arc and two radius joining each other. ठीक है. अच्छा, this बर्फी, this pizza piece, just like as a pizza piece. ठीक. अच्छा, now what is segment? Segment is if we join these two end of the arc, दोनों radius का, two radius are started from center and joining on the arc. जिस पॉइंट पे वो जुड़ रहे हैं उसका कॉर्ड बना दीजिए, then this will be in the triangular shape. Sector will always be in the form of triangle. If it is R, this will be also R. This is the center of this. This portion is the angle of the triangle, and the remaining portion, this is segment. This is segment. It means segment area will be the area of the sector minus area of the triangle made by this chord. Made by this chord triangle. ठीक है, the triangle made by this chord. It means formula क्या बना, sector area minus segment minus triangle area of the triangle made by the chord joining these 2 points, end point, this portion by chord will be equal to area of the segment.
ये क्लियर होना चाहिए. If it is clear, then you can do each and everything. Now, अब इस क्वेश्चन की तरफ करते हैं. Now we have to pay the attention to this question. The chord of the circle of radius 12. It means we are having a circle of radius 12. Don't go on shape. ये okay. ठीक है. Radius is 12. It means this distance is 12 from center. Subtend an angle of 160 at a center, 120 at a center. It means this. This is also 12. In between this 120 angle बन रहा है. इसके सेगमेंट का एरिया निकालना है. फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट. इट मींस ये वाला पोर्शन में निकालना है. दिस इज द एरिया. दिस इज सेगमेंट एज डिफाइंड बिफोर. बताया था सेगमेंट. ये एरिया निकालना है. व्हाट इज बी डन. अब क्या करना है. सबसे पहले हम सेक्टर एरिया निकालें. फिर उसमें से उस ट्रायंगल का एरिया घटा दें जो ये कॉर्ड सेंटर पे बना रही है. इसका लेस. ओके. लेट दिस इज ए बी. ओके. अब देखिए एक चीज और याद रखिए. जब कभी कोई ट्रायंगल बनता है कॉर्ड से, दो पॉइंट को जोड़ने पर, सर्कमफ्रेंस पे जोड़ने पर जो ट्रायंगल बनेगा, रेडियस तो बराबर होंगे, दो साइड्स बराबर होंगे. उसका एरिया डिपेंड करेगा ऑन दिस एंगल. दिस विल डिपेंड ऑन द एंगल. और द फॉर्मूला ऑफ दिस एंगल और ट्रायंगल, जिसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इसका इन केस ऑफ दिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू किसके बराबर होगा. ये याद रखा. किस पे डिपेंड करेगा. इस एंगल पे. जितना बड़ा एंगल होगा उतना ये ज्यादा होगा. तो इसका 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ये एरिया होता है ट्रायंगल का. अगर ये 120 है तो साइन 120, 60 है तो 160. आर जिस अगर वो हर ट्रायंगल का एरिया नहीं होता, वो वाला ट्रायंगल जो इस कॉर्ड पर सर्कल के अंदर बना है विद द रेडियस ऑफ आर. क्लियर. ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड द सेगमेंट. अब रख लीजिए. इट मींस सेगमेंट एरिया will be equal to sector area minus area of this triangle OBA. Area of the triangle AOB कर लीजिए. ठीक है. AOB. ओके. सेक्टर एरिया कितना हो गया. थीटा अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सॉरी, theta upon 360 pi r square minus area of the segment 1/2 r square sin of theta. Okay. Where theta is equal to, for us, our case, 120. It means this will be equal to 120 upon 360. R square is also here. Here r square can be taken as a common one. R square बाद में ले लेंगे. इसको पाई लिख देते हैं. पाई माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर. ओके. आर स्क्वायर इज टेकन कॉमन. इसकी कर दिए इसको 360 है. दिस इज 1/3 हो जाएगा. 12 3 36 होता है. इंटू पाई इज टू बी यूज्ड 3.14. 3.14 is the constant value of the pi. When it is not given, then you can treat it yourself. It should be in your memory. Always you can put this 22/7 or 3.14. This is the same thing. Whatever the easiest one, you can use this. जो आपको आसान लगे वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं. 3.14 भी लिख सकते हैं और 22/7 भी लिख सकते हैं. जैसे 22/7 आपको पता है, वैसे 3.14 भी पता होना चाहिए. सेम इज द कंडीशन विद √3. √3 और √2 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए. 1.414 होती है √2 की और √3 की होती है 1.732. अगर नहीं भी दी है देन यू कैन यूज इट. वी आर गिवन दिस √3 is equal to 1.732. तो पाई की वैल्यू इज टू बी पुट ओवर 3.14 minus 1/2 sin 120.
साइन 120 कितना होता है? √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। ओके, into r square. R is equal to 12. It means 144, because r is equal to 12. Theta is equal to 120. ओके, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए जी। एलसीएम लेते हैं, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा एलसीएम 3.14। 4 3 12 होता है इसलिए। और यहाँ 4 है √3 into 3 into 4। 4 into 3.14, 3 to √3 into 144. This will be the calculation. इसको काट दीजिए। This is 12. It means we'll get here 4 into 3.14, that is equal to 4 into 3.4 कितना होगा? 16 carry 1 5 12 12.56 minus 3 into 3 1.732 into 12. Okay, this is 12.56 minus 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 7 are 21 and 2 into 12. कितना बच रहा है जी? 12.56 माइनस 5.20 लिख लीजिए। शॉर्ट में हम 20 भी लिख सकते हैं। आप ज़्यादा कैलकुलेशन मत कीजिए। इसको हम इसको हम एक्स्ट्रा से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते? 12.56 माइनस 5.20 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 2 के 9 है, 20 लिख दीजिए और इसको फिर 12 से बड़ा कर दीजिए। तो ये कितना बचेगा जी? ये बचेगा 6 3 then 7.36 into 12, ये 88.44 का लगभग आएगा। 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। 88.44 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। सेगमेंट, सेक्टर, इट शुड बी इन योर मेमोरी। बस मेरा पर्पज ये है सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज ना हो। सेक्टर हमेशा पिज्जा का पीस याद रखिए, याद रहेगा। ऐसे करके आर्क बना होता है, पोर्शन ऑफ द सर्कल होता है। और सेगमेंट जो होता है उसके अंदर जो एरिया कॉर्ड, उसके जिस सिरे पे आपकी रेडियस मिल रही है उससे मिलने वाली कॉर्ड के एरिया, ट्रायंगल के एरिया को घटा दें तो जो चांद की छोट में छोटा सा टुकड़ा बचेगा, ये वाला टुकड़ा जो बचेगा ऐसे कर्व गया कॉर्ड के, ये वाला हिस्सा जो बचेगा ये होता है आपका सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है, ऑफ द सर्कल। सेगमेंट भी सर्कल का है, सेक्टर भी सर्कल का है। आपको ट्रायंगुलर एरिया उसमें से घटाना है, उस ट्रायंगल का एरिया घटाना है सेक्टर में से जो दो रेडियस उसके दोनों आर्म सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट को मिलाने से कॉर्ड बनती है उससे जो बनता है। ओके, और उसका फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखिए हमेशा, 1/2 r² sin थीटा। sin theta is the angle made by the two radius on the arc. Okay, ये याद रखिए। ये सभी के लिए नहीं, ओनली इन द केस ऑफ that triangle which is whose two sides, whose two corner are at the circumference of the circle, making an angle theta on the center. Okay, thank you, good night, see you. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और समझिए। क्वेश्चन आएगा कम से कम 5 नंबर का, 4 नंबर का आएगा, आता जरूर है, इजी होता है। √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1.732। √2 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, नहीं दे तभी इजी पड़ता है कैलकुलेशन, 1.414। और ये भी पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है। ये ना भी दें तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, सी यू।